নমস্কার, মানুষের ভাষায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি প্রবীর রায়চৌধুরী আপনাদের সাথে আজকে একটি বিশেষ এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। এর আগে একদিন দেখিয়েছিলাম এই রকমই একটা এপিসোডে যে পাঞ্জাবের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী, আপের যে মুখ্যমন্ত্রী, তিনি একসাথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে অসংখ্য সিএসসি সেন্টারের পঞ্চায়েতে অসংখ্য সিএসসি সেন্টারের উদ্বোধন করছেন। এবং আজকে যেটি দেখাবো সেটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, অবশ্যই বিজেপির, যোগী আদিত্যনাথ মহাশয়, তিনি আজকে একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে একসাথে পুরো রাজ্যব্যাপী পরিবহন সেবা থেকে সিএসসির বিভিন্ন ধরনের পরিষেবাকে উদ্বোধন করলেন। সিএসসি ভিএলিদের নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে একটু বলি আপনাদের, সেই অংশটি দেখানোর আগে, যে এখানে প্রচেষ্টাটা হচ্ছে কি না, আমাদের রাজ্যে সিএসসির যে একটি হতশ্রী অবস্থা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে সিএসসিগুলির অপসারণ ঘটেছে এবং সিএসসির যে মর্যাদা, সেটা আপনারা যারা সিএসসি ভিএলই আছেন, নবীন ভিএলই আছেন যারা, তারা সেটা দেখুন যে সিএসসির মর্যাদা, একজন ভিএলির মর্যাদা কতটা। এবং যেটা বলা আছে না, যে স্পেশাল পারপাস ভেহিকল, মানে সমাজের একটা চালিকা শক্তি সেই সিএসসি। কেন না, সিএসসির মাধ্যম দিয়ে সমস্ত সরকারি পরিষেবা, যারা সাধারণ দর্শক দেখছেন সিএসসি ভিএলই ছাড়া, তাদের জন্য বলছি যে এই প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই সিএসসি সেন্টারগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা অত্যন্ত সহজে যাতে মানুষ পেতে পারে, সেটাই হচ্ছে সিএসসির মূল উদ্দেশ্যের জায়গাটা। এবং তার মাধ্যম দিয়ে যিনি সেই সেন্টারের পরিচালক, তার উপার্জন এবং সেই পুরো এলাকাটার একটা শ্রীবৃদ্ধি বা উন্নয়নের তার ভূমিকা রাখা, এটাই মূল উদ্দেশ্যের জায়গা। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে যে অবস্থাটা চলছে সিএসসির ব্যাপারে, সেখানে আবেদন নিবেদন ইত্যাদি, এর আগের অন্যান্য এপিসোডে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি অনেক কিছু হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সিএসসি ভিএলিদের বলছি, আশা ছাড়লে তো চলবে না। এই যে পরপর দুটি রাজ্যে আজকে যেটা দেখবেন উত্তরপ্রদেশে, যে এই বিপুল কর্মকাণ্ড পরিবহন দপ্তর থেকে, এবং সেটা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভিএলিদের, ওখানে বলা হয় জনসেবা কেন্দ্র, হ্যাঁ, আমাদের এখানে যেমন তথ্য মিত্র কেন্দ্র বলা হয়, তা তাদের বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার বিতরণ করা, সাম্মানিক বিতরণ করা তিনি নিজে হাতে করছেন। দেখুন, এর আগের এপিসোডে বলেছি যে পাঞ্জাবে যেমনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নন। কাজে এই মনোভাবটা আনা যে রাজনীতির একটা ক্ষেত্র পরিসর আছে, কিন্তু সিএসসি একটা পরিষেবার জায়গা। সেখানে রাজনীতির যে দলগুলি, কেন্দ্র রাজ্য, এই মানুষ যাতে পরিষেবা পায় সেই জায়গাটাতে একমত হওয়া। এখানে অনুরোধ করছি এই রাজ্য বিজেপিকে, এর আগেও অন্যান্য এপিসোডে বলেছি যে আপনারা বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। দেখুন যে বিজেপি শাসিত রাজ্য, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি কি করছেন এই সিএসসিদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। বিপুল কর্মকাণ্ড করছেন তিনি। এটা রাজ্য বিজেপিকে বিশেষভাবে দেখাতে চাইছি এই এপিসোডটা। তাঁরা তাদের যে নেতৃস্থানীয় রয়েছেন, তাঁরা একটু নড়ে চড়ে বসুন এবং সিএসসিকে নিয়ে সিরিয়াসলি দেখুন যে সেই তার ভিতরে কি কোন কোন সেই জায়গাগুলো যেখানে গণ্ডগোল আছে, সিএসসির নিজস্ব ভিতরের জায়গাটা, সেখানটায় কোথায় কোথায় সেই গণ্ডগোলগুলো আছে। আর সিএসসিগুলিকে এই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা যা কিছু করবার আপনারা করুন, করে সিএসসি ভিএলিদের, কর্মচ্যুত ভিএলিদের তাদের স্বাধিকার সেটা ফিরিয়ে দিন। আর বেশি কথা বলবো না, তবে এইটুকু বলবো যে হয়তো প্রচেষ্টার কিছু কিছু কথা, কিছু কিছু চেষ্টা চলছে, যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ভাষার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম লেখা, টুইট, ব্যক্তিগতভাবে সেগুলো
পরে মানে আমি নিজের ব্যক্তি প্রচারে খুব একটা বেশি বিশ্বাসী নই এবং সেটা সংকোচ বোধ করি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন জায়গাতে সেই সমস্ত বার্তাগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। হয়তো একদিন এই রকম, এই যে অনুষ্ঠানটা এক্ষুনি আপনারা দেখতে যাচ্ছেন, এই রকমই হয়তো আমাদের রাজ্যেও একদিন ঘটবে, এই আশাটা রাখছি। সেদিন আমি থাকি অথবা না থাকি, আমি কোন সংগঠনে থাকলাম, আমি কোন সংগঠনে পার্টিসিপেট করলাম না করলাম, এর সমস্ত কোনো কিছুতে আমার থাকার দরকার নেই, কিন্তু আপনারা উজ্জীবিত হন, আপনারা এই যে সিএসসি ভিএলিরা তারা তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক। ব্যাস, চলুন এবার দেখি যে উত্তরপ্রদেশে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঠিক কী করলেন সিএসসির শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে, এবং কি বিপুল কর্মকাণ্ড জাস্ট উদ্বোধন করলেন গতকাল। চলুন দেখে নিই সেই অনুষ্ঠানটা, পুরোটা মন দিয়ে দেখুন। सेवा का शुभारंभ करने की कृपा करें। बटन दब गया है मित्रों, तालियां बजाएं जोरदार। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है परिवहन निगम एवं सीएससी जन सुविधा केंद्रों के मध्य एमओयू के आदान प्रदान का। मैं अनुरोध करूंगा परिवहन निगम की ओर से एमडी श्री मासूम अली सरवर जी से और जन सुविधा केंद्र की ओर से एमडी सीएससी श्री संजय कुमार राकेश से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष एमओयू का आदान प्रदान करें और उत्तर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस एमओयू का आदान प्रदान। हॉल खामोश क्यों रहेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग का उच्च प्राथमिकता का विषय रहा है। सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों और हम सब उसके लिए जागरूक बने। इस मुहिम को सकारात्मक दिशा देने के लिए आज एक और एमओयू हो रहा है परिवहन विभाग और आईआईटी खड़गपुर के मध्य। परिवहन विभाग से विशेष सचिव श्री केपी सिंह और आईआईटी खड़गपुर से प्रोफेसर उदय शंकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर हो एमओयू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आज खुशखबरी का दिन है। अब A4 साइज में मिलने वाला इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अब विदेश जाने वालों को एक सुंदर बुकलेट के रूप में मिला करेगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन करने की कृपा करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं, मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन हो रहा है। उधर भी दीजिए तेजी के साथ। पूरा हॉल आह्लादित है और आपकी बार बार बजने वाली तालियां बता रही हैं कि परिवहन विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आपको कितना अच्छा लग रहा है। ये बुकलेट लेकर आप विदेश जाएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हम भारत से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। आज से उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग एक और नई शुरुआत करने जा रहा है। आज के बाद वाहन संबंधी किसी भी शिकायत के लिए आपको 3 डिजिट का बेहद आसान टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया 149 सरल परिवहन हेल्पलाइन का बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करें। बटन दब गया है मित्रों, 149 का शुभारंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, अब तक आप सब ने रेलवे को ट्रैक किया होगा, ट्रेन लेट है या टाइम पर है। खुशखबरी यह है कि अब आप घर बैठे डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से बसों को भी ट्रैक कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से आप सुझाव और शिकायत भी दे सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मार्गदर्शी डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ करें। और यह शुभारंभ हो गया है डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि जिस प्रकार हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों को सुविधाएं मिलती हैं उसी प्रकार बस स्टेशन पर भी मिलें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कृपया 82 करोड़ रुपए की लागत से 25 बस स्टेशन और डिपोज का जो विकास हो रहा है उसका बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
और इस प्रकार इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि परिवहन निगम द्वारा प्रथम चरण में 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 7 बस स्टेशनों को 851 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। कृपया बटन दबाकर उसका भी लोकार्पण करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य विराजमान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने वाले चयनित बस स्टेशनों के विकासकर्ताओं के प्रतिनिधियों का मंच पर आने का समय है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं एमडी ओमेक्स मोहित गोयल, एमडी मेसर्स डीजीएस टाउनशिप ईश्वर देव शुक्ला और एमडी वेल्टिक्स बिल्डकॉन अलीगढ़ नरेंद्र सिंह जी से कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। मोहित गोयल, ईश्वर देव शुक्ला और नरेंद्र सिंह कृपया एक साथ मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। बाकी कृपया लाइन अप कर लें। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर रहा है और ऐसे 18 केंद्र तैयार हो चुके हैं। समय है ऐसे 4 नवीनतम केंद्रों के प्रभारियों को प्रमाण पत्र वितरण का। सबसे पहले देवरिया के वैभव शाही कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ये एडीटीसी है। जौनपुर के कृष्णमूर्ति सिंह, सोनभद्र के आनंद मिश्रा, एटा के गौरव शर्मा। गौरव शर्मा मंच पर हैं। और गौतम बुद्ध नगर के योगराज सिंह। आज का दिन परिवहन विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है मित्रों। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करना आवश्यक है और प्रदेश में स्थापित किए जा रहे रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के प्रतिनिधि हापुड़ के ध्रुव सिंघल, बुलंदशहर के अलीम खान, यहां पर वाहन स्क्रैप हुआ करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा। गाजियाबाद के फरमान और फरमान के बाद हापुड़ के कैफ खान मंच पर आएंगे। कैफ खान कृपया आप भी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इसके पश्चात गाड़ियों के ऑटोमेटेड फिटनेस करने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के प्रतिनिधि निवेशकों को प्रमाण पत्र लखनऊ के रोहित सिंह। इन स्टेशंस पर ऑटोमेटेड फिटनेस हुआ करेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगरा के अजय कुमार राय, कानपुर के विवेक श्रीवास्तव और मिर्जापुर के अनुपम प्रकाश त्रिपाठी, ये सब बदलते हुए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले 4 व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बलिया की सीएससी के अशुमेंद्र प्रताप सिंह, बलिया के ही क्रांति कुमार, बलिया में क्रांति हुई थी हम सबको पता है, और बलिया के क्रांति कुमार मंच पर हैं, जोरदार तालियां बजाएं। वाराणसी के पवन कुमार सिंह, और लखनऊ के अखिलेश शर्मा, ये सब जन सुविधा केंद्रों के प्रतिनिधि हैं। मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आलमबाग डिपो की गोल्डी मौर्य। महिलाएं उत्तर प्रदेश की आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आलमबाग डिपो की ही संगीता गौतम, कैसरबाग डिपो की अंशिका गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। टिमटिमाती लालटेन की धुंधली रोशनी से बाहर निकलकर आज चमकते आसमान में हमारा प्रदेश विकास की ऊंची छलांग लगाने को तैयार है।
उपस्थित महानुभावों, अपनी दूरदर्शिता और कठिन परिश्रम के बल पर उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में नई जान फूंकने वाले 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने को सतत प्रयत्नशील उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय का। परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री अमित गुप्ता जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पीपीपी मोड पर जो बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसके निर्माणकर्ता और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर एक अच्छे माहौल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस जुपिटर हॉल में बैठे हैं। आपने देखा होगा यह अपने आप में एक मॉडल है। ये जुपिटर हॉल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिर से रिनोवेट किया है। पैसा लगाया है तो पैसा कमाया भी है। 4 वर्ष में 32 करोड़ रुपए से अधिक की आय अकेले इस सभागार से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हुई है। तो इसलिए इतना शानदार माहौल आज उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम के लिए भी उपलब्ध करवाया है। तो मैं सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो प्रदेश की राजधानी का सर्वाधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों का एक केंद्र बिंदु है, उसमें जुपिटर, मार्स और मरकरी के साथ ही अन्य सभागारों के पुनर्विकास के लिए, सुंदरीकरण की इस योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूं। और ये परिवहन विभाग पहला कार्यक्रम है जो इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। यानी जुपिटर हॉल के पुनरुद्धार और पुनर्विकास कार्यक्रम के बाद आज ये पहला अवसर है जब परिवहन विभाग का एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। क्योंकि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, कार्यक्रम तो 11 बजे से मुझे बताया गया था, तो मैं मानता था कि मंत्री जी आपके 12 बजे तक पहुंचेंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं मीटिंग में ही था, मुझे 10 ही बजे बताया गया कि मंत्री जी पहुंच गए हैं। वे रात्रि में भी 12 बजे तक यहां थे और हम लोग 11 बजे, अब मेरा एक भाषण भी प्रारंभ हो चुका है। यह एक मॉडल है
और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए, तो इसका मतलब ये है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन प्रयोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना और खासतौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितनी बहनों ने यात्रा की इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार, ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश, अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। अगर वह समय की गति से 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखता है तो वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके अपना विजय श्री का झंडा गाड़ता है। और उस विजय श्री की प्रगति की यात्रा में विजय श्री का झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की इस परिकल्पना के सारथी बनेंगे। परिवहन विभाग के सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन सेवाओं को 3 प्रकार की उन योजनाओं के साथ हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी, लघु अवधि की प्लानिंग क्या होगी अगले 3 साल के अंदर, अगले 10 वर्ष के अंदर और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें क्या कुछ अचीव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर आप आसानी से इसे अचीव भी कर सकते हैं। आसानी से, थोड़ा सा प्रयास, ये फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जन सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। और परिवहन विभाग ने करके दिखाया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ, 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब 1 करोड़ कामगार और श्रमिक देश और से अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने गांव के लिए प्लान किए थे, न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम,
इन सभी राज्यों से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक इन 6 राज्यों से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थे, फिर बिहार के थे, वेस्ट बंगाल के थे, झारखंड थे, उड़ीसा था, असम था। वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को उनके गांव तक और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो कामगार और श्रमिक थे उन्हें उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक, सीमा तक। उत्तराखंड के प्रवासियों को हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर जहां वहां की सरकार ने मांग की थी, देहरादून, हल्द्वानी और अन्य स्थलों पर, हरिद्वार तक पहुंचाने का मैं योगदान दिया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ जगहों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ स्थानों पर परिवहन विभाग के हमारे जो कर्मचारी थे, चालक परिचालक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक उनको वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया था। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इसी वर्ष के प्रारंभ में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ, कितना भीड़ था, 66 करोड़ लोग 45 दिन के आयोजन में आए थे और 45 दिन के इस आयोजन का हिस्सा बने थे। सर्वाधिक लोग आ रहे थे बसेस से, अपने अपने वाहन से आ रहे थे, बसेस से आ रहे थे। परिवहन निगम भी लगातार काम कर रहा था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ होती थी तो रेलवे स्टेशन से उन्हें प्रयागराज से बाहर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम का बेड़ा हमेशा सतर्क रहता था, कार्य करता था, मजबूती के साथ लगा रहता था। और इसीलिए परिवहन विभाग को हम लोगों ने हमेशा इस बारे में माना है कि परिवहन विभाग हमेशा प्रदेश के अंदर यह समय का साथी है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है उस समय आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। और इसलिए राज्य सरकार ने समय समय पर परिवहन विभाग के पुनर्विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अपनी योजनाओं को खुले और मुक्त हस्त से उन्हें सपोर्ट भी किया है। आज उन्हीं सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है और परिवहन विभाग के माध्यम से सीएससी के साथ एमओयू भी हुआ है। यानी एक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आम जन को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके, वह अपनी जरूरत के हिसाब से परिवहन विभाग से जुड़ी हुई सेवाओं का उपयोग कर सके। आज ये एमओयू यहां पर संपन्न किया गया है। आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच में एमओयू, यह इस विभाग में तकनीक का उपयोग करते हुए सड़क सुरक्षा के मानकों को कैसे हम आज नेशनल एवरेज से भी अच्छा करने में सफल हों, जो हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है, उसका भी एक एमओयू यहां पर संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की एक नई बुकलेट का भी विमोचन हुआ है और सरल परिवहन हेल्पलाइन का भी 149 की हेल्पलाइन भी जारी हुई है। 149 की हेल्पलाइन एक सामान्य पैसेंजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ कर दिया है तो ये ऐप के साथ साथ हेल्पलाइन एक सामान्य नागरिक को अत्यंत मदद करेगा अपने परिजन के बारे में, अपने नातेदार रिश्तेदार के बारे में कि वह व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, कहां पे व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं। आज यहां पे इसके साथ ही पीपीपी मोड के अंतर्गत जो हम लोगों ने बस स्टेशनों को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाया है, उनका उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है, जो 82 करोड़ रुपए की लागत से हैं। और पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने वाले जो बस स्टेशन हैं, 23 बस स्टेशन हम लोगों ने
अब तक इसके लिए अनुमोदन कैबिनेट से दिया है, जिसमें से 7 का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन शेष 16 भी तत्काल तैयार हो जाएं। इसके साथ ही हर जनपद में जाना है तो 54 ऐसे अन्य बस स्टेशन भी इंतजार कर रहे हैं, जहां पर पीपीपी मोड पर हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। एक छत के नीचे बस स्टेशन भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, यात्री चालक परिचालक की सुविधा, उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर होगा, तो वहां पर होटल आदि की सुविधा भी हो। कोई पैसेंजर आया है, उसको ठहरना है, उसकी सुविधा हो, पार्किंग की उचित व्यवस्था भी हो। ये सभी चीजें हमें इसके माध्यम से विकसित करनी होंगी। एडीटीसी के 4 नवीन केंद्रों के प्रमाण पत्र भी यहां पर आज जारी किए गए हैं। आरबीएसएफ के 4 नवीनतम केंद्रों के भी प्रमाण पत्र आज यहां पर जारी किए गए हैं और 4 नवीनतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर के निवेशकों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के विषय में भी यहां पे प्रमाण पत्र दिए गए हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह को से जुड़े हुए 3 महिलाओं को भी जो योग्य थी, दक्ष थी, उन्हें नियुक्ति पत्र भी यहां पर वितरित किया गया है। ये इन सबके साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा भी आज कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ हो रही है। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है, सड़क सुरक्षा। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, आम जन को जागरूक करना, आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। कोरोना कालखंड में वैश्विक महामारी के दौरान 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं और नौजवानों को खोते हैं। परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। केंद्र की सरकार भी और माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन जागरूकता का अभाव, बेहतर समन्वय को बनाए रखते हुए व्यापक जन जागरण के माध्यम से हम इसको फेज वाइज न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। याद करिए, अगर आपके कारण किसी पैसेंजर की जान बचती है तो प्रचार आपका अच्छा होगा, लोगों के मन में एक सुरक्षित यात्रा की अवधारणा परिवहन निगम के बारे में बनेगी। आपके कारण अगर कहीं लापरवाही के कारण किसी यात्री की जान जाती है तो परिवहन निगम की बस सेवा भी बदनाम होती है और साथ साथ आपको आर्थिक हानि भी होती है। यानी आपको कंपनसेशन भी देना होता है। यानी दोहरे लाभ भी हैं तो दोहरे नुकसान भी है। अंततः भुक्तभोगी पूरे परिवहन विभाग को होना पड़ता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिनको भी हम ड्राइवर के रूप में रखते हैं, जिनके हाथ में भी बस की स्टीयरिंग दे रहे हैं, उनका नियमित रूप से मेडिकल और फिजिकल फिटनेस उनका होता रहे, नियमित रूप से।
हर 3 महीने में कैंप लगाइए, हर 3 महीने में उनकी मेडिकल फिटनेस के कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए, और खासतौर पर आंखों के चश्मे तो जरूर दिखवाइए, क्योंकि पता लगा कि सामने दिखाई नहीं दे रहा और फिर भी स्टीयरिंग पकड़ करके चले जा रहे हैं, अंदाजे से चले जा रहे हैं। अंदाजे से आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सड़क पे बस लेकर के चल करके दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है, और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है, आपके हमारे परिचित कोई भी हो सकते हैं। हमारे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, प्रदेश का बाहर का भी तो हमारा अतिथि है, उसके प्रति भावनात्मक लगाव हमारे मन में होना चाहिए, और उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम उस जिम्मेदारी को अगर लें तो इस सड़क सुरक्षा के बारे में व्यापक जन जागरूकता, और IIT खड़गपुर इसमें अच्छा योगदान दे सकता है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम IIT के साथ बैठें, हम लोग टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें, यूपी पुलिस का भी सहयोग लें, परिवहन विभाग के अधिकारी भी उसमें सहयोग करें, PWD नगर विकास और अन्य विभागों के साथ भी बेहतर समन्वय हो। हम देखें किन कारणों से ये हो रहा है, संस्थाओं को भी, इंस्टीट्यूशन को भी हमें अपने साथ सहभागी बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक के नियमों के बारे में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान, स्कूलों में व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम बने। हेलमेट पहन करके चलने से कैसे लोगों की जान बच सकती है, शराब और पी करके या नशे में बस चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ओवर स्पीडिंग कैसे खतरनाक हो सकती है। अगर हम वाहन के फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट कैसे हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। इन सब के बारे में अगर हम विजुअल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। याद रखना, बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है, यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में, वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती तो कम से कम जान तो बच जाएगी। हेड इंजरी होने से और जीवन भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा है कि वह सुरक्षित जीवन जी सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के कौन बताएगा लोगों को? ओवर ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के कैसे भी क्या करेंगे? रात्रि भर क्यों चलते हैं? मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूं, भाई क्यों आप रात्रि भर चल रहे हैं? भाई अपना समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे अपने सारी दिनचर्या को पूरा करिए। सारे कार्य समय पे होने चाहिए।
अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैं भी रात में उगूंगा, तब तो हो गया, फिर होगा ही धरती का कल्याण। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा। प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और ये आज एक ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की भी, देश की भी। इस पर हमें अपने आप को तैयार करना होगा और मानना मेरा है ये संभव है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से इसके बारे में कहा था कि थोड़ा इसके बारे में काम करिए। उन्होंने एक ऐप विकसित किया, देखा कि किन क्षेत्रों में एक्सीडेंट होते हैं और उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य करके उस ऐप को अप्लाई किया, कार्य किया। वहां पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई और अन्य तरीके से भी कार्य किए। परिणाम क्या रहा? अवेयरनेस का परिणाम क्या रहा? जहां महीने में 18 दुर्घटनाएं होती थी, उस स्पेसिफिक स्थल पर वह घट करके 1 महीने में 3 पर आ गई। और लगातार 3 महीने से प्रयोग चल रहे हैं हमारे। बहुत सारे स्थान हमने चिन्हित किए जहां पर ये चीजें आ रही हैं। आप सोचो, 18 दुर्घटनाओं को घटा करके 3 पर पहुंचाना और 3 को 0 पे पहुंचाना, ये रिजल्ट लाएगा। अलग अलग क्षेत्र में हमें इन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, इसके लिए नगर निकायों के साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो कमेटियां हैं उनके साथ में बैठ करके तय करना पड़ेगा कि भाई इनके लिए पार्किंग स्पेस तो सड़क वाहन खड़े करने के लिए नहीं है। कोई ट्रक, कोई टैंकर सड़क के किनारे न खड़ा हो, बल्कि जो उसके लिए जगह रिजर्व की गई हो वहीं पर वो खड़ा हो। ये जिम्मेदारी बनती है परिवहन विभाग के अधिकारियों की। पेट्रोलिंग बढ़ाएं, इन चीजों को दुरुस्त करें। एक तरफ यह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य दिया है नेट जीरो एमिशन का, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका एक बेहतर माध्यम है। परिवहन विभाग भी, नगर विकास विभाग भी इस दिशा में कार्य कर सकता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मेरा मानना है अकेले परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग थोड़ा भी प्रयास कर ले, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख नई नौकरी सृजित करवा सकते हैं आप लोग। 3 लाख नई नौकरी केवल बसेज खरीद करके, गांव गांव की कनेक्टिविटी को, शहर टू शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी दे सकते हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए। परिवहन विभाग भी चलाएं, निजी क्षेत्र को भी परमिट करिए। नगर विकास विभाग भी चले, वो भी निजी क्षेत्र को भी उसमें परमिट करें, अच्छी सेवाएं दें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। कितने नौजवान आ जाएंगे, कितने लोगों के हाथों को कार्य मिलेगा, स्वयं का कार्य होगा, एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। कोई नाबालिग, कोई अनट्रेन्ड व्यक्ति, वह 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बसेज हो या कोई ट्रक्स हो, इसकी स्टीयरिंग में न बैठे। यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमें इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस स्टेशन हमारे क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास हो? ये हो सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, इस सभागार में अच्छा किया कि आज परिवहन मंत्री ने यह कार्यक्रम यहां पे किया। कितना शानदार माहौल में, आवाज भी नहीं गूंज रही है लेकिन सुनाई सबको दे रही है।
कितना सुंदर वातावरण, पूरा सभागार भी भरा है, लेकिन कार्यक्रम भी शानदार तरीके से हो रहा है। ये चीजें आपके बस स्टेशनों में भी हो सकती है, वहां पर भी हो सकती है। हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि भाई परिवहन निगम की बस अपनी परमिसेस में रहेंगे, सड़कों पे बेतरतीब नहीं खड़े होंगे। हमें बस स्टेशन को उस रूप में बनाना पड़ेगा। इनकम भी होगी विभाग की, इनकम भी होगी तो आप सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। आप सोचो कि अगर पैसा ही नहीं होता तो क्या हम कोविड कालखंड में उत्तर प्रदेश के वासियों को इतनी सुविधाएं दे पाते? पैसा नहीं होता, क्या हमने यहां पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया होता? पैसा था तो कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं जहां पे पैसा नहीं था, जहां पे बहुत सारे कारपोरेशन ऐसे थे जहां पैसा नहीं था, उसको बाइंड अप करने के लिए आदेश कर दिए गए, बंद कर दो भाई। ये चीजें हमें तैयार करनी पड़ेंगी। अगर हम समय की गति और समय की डिमांड के अनुसार, क्योंकि ये सुविधा तो आप जितनी अच्छी सुविधा देंगे, ये डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होता है, मार्केट का ये नियम है। आप अच्छी सेवा देंगे, लोग आपके पास आएंगे। आप अच्छी सेवा नहीं देंगे, लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। और मैंने देखा है इलेक्ट्रिक बस सेवा के प्रति लोगों के मन में एक नया चार्म है, लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। पर्यावरण की भी हम रक्षा कर पाते हैं और साथ साथ बेहतरीन यात्रा का भी आनंद लोग ले पाते हैं उससे। हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें सर्विसिंग की भी समस्या का समाधान, डीजल पेट्रोल की समस्या का भी समाधान सब अपने आप हो जाता हो। चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, उसमें भी निजी वेंडर आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास परिवहन विभाग को आगे करना पड़ेगा। ये चीजें हो सकती है, मंत्री जी समय दे रहे हैं, बस ये कि समय के अनुरूप करा दें तो और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती हैं। और ये चीजें हमें आगे बढ़ानी पड़ेंगी, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। स्क्रैपिंग के भी उसको हमें देखना पड़ेगा। जितने भी आउटडेटेड सरकारी वाहन हैं, जितने भी हैं, उन सबकी को स्क्रैप तक भेजना, स्क्रैपिंग करनी चाहिए। उसका भारत सरकार लाभ दे रही है। कोई निजी वाहन भी अपना स्क्रैप करना चाहता है तो उसको हम रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं। ये बार बार ये सुविधा नहीं मिलेगी। पुराने वाहन को ले जाने से अच्छा है, पर्यावरण के लिए चुनौती और स्वयं की सुरक्षा खतरे में डालने से अच्छा है स्क्रैप करो, रोड टैक्स का लाभ प्राप्त करो। कितनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस सुविधा के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और भी अन्य ड्राइविंग का जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बने हैं, उनके सेंटर बने हुए हैं, इसको और जवाबदेही के साथ चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों की जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा। ये सभी परिवहन विभाग की छवि को और बेहतर करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज जो कार्यक्रम हम लोग परिवहन विभाग का कर रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा? और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। राजस्थान के अंदर से भी कोटा में जो लोग कोचिंग कर रहे थे, एक साथ वहां से लोगों को लाने, उत्तर प्रदेश में उनके जनपदों तक पहुंचाने, उत्तराखंड में भी उन तक पहुंचाने तक का कार्य
परिवहन निगम के ही हमारे चालक परिचालकों ने किया था। ऐसे ही महाकुंभ के दौरान भी जब बहुत ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पे होती थी तो हम परिवहन निगम की ही बसेज को दौड़ाते थे। भाई आप बसेस लगाओ, एक साथ 200-200, 500-500 बसेस लग रही थी और यात्रियों को भर करके फिर वहां से प्रयागराज के बाहर वाराणसी तक, चंदौली तक, गाजीपुर तक, गोरखपुर तक, देवरिया तक, बलिया तक पहुंचाने का काम होता था। बड़े अयोध्या तक पहुंचाने का काम होता था। ये तब जब हमारे पास साधन थे, तब ना सुविधा थी, तब हमें इन सब के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने इतनी सारी सेवाओं को एक साथ आप लागू कर रहे हैं। इनकी नियमित समीक्षा, इनकी मॉनिटरिंग और इसका प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें सदैव तैयार रहना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना हमें पड़ेगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो विभाग की है, उसके तहत अपनी सेवाओं को और बेहतर आप कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को इन सभी योजनाओं की, इन सभी कार्यक्रमों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सड़क सुरक्षा के उस मानक को पूरा करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए और दिशा निर्देश